Lord is here. वो यहाँ पर है, And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। That means tonight you can expect freedom from everything that has been tormenting you for years. इसका मतलब आज रात आप आजादी की उम्मीद कर सकते हैं हर उस बात से जो आपको सालों से सताती आई है, No matter what it is, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। if it's sickness or disease, अगर वो बीमारी या if it's रोग an है, addiction, कोई बुरी लत है, if it's depression, तनाव है, no matter what that is, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, but because the Spirit of the Lord is in this पर place, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, आज there is freedom, आजादी है, there is liberty. स्वतंत्रता है। Can you say this after me? Tonight is my night. क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं आज मेरी रात है? Come on, say it as if you believe it. Tonight is my night. पूरे दिल से कहे आज मेरी रात है। Amen. You know, when I was saved आप and जानते I हैं started to go to church, जब मैंने उद्धार पाया और मैं चर्च जाने लगा, I saw very few people walking in victory. मैंने देखा बहुत ही थोड़े लोग हैं जो जय में चलते हैं। I saw majority of believers were depressed. मैंने देखा ज्यादातर विश्वासी डिप्रेस थे, They were bound by devils. शैतानों से बंधे हुए थे, And there was no evidence of victory in their lives. और उनकी जय में, उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं था। So I asked the Lord, मैंने प्रभु से पूछा, I said, Lord, why is it that very few people actually walk in victory and the remaining are walking in defeat? मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि बहुत थोड़े लोग जय में चलते हैं और ज्यादातर लोग हार का जीवन जीते हैं? And he opened my eyes and gave me an answer from the scripture. और उसने मेरी आंखों को खोला और मुझे वचन से उत्तर दिया। It is not God who decides that some people will thrive, they will flourish, and others, they will live from one struggle to another struggle. ये परमेश्वर नहीं जो तय करता है कि कुछ लोग हमेशा परेशानी में रहेंगे, संघर्षों में रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जय में चलेंगे अपने जीवन में। Your heavenly Father has this one will for you in every area of your life. आपके स्वर्गीय पिता की आपके लिए ये एक इच्छा है आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, And that is victory. और वो है जय। Victory. जय, Victory. जय, No matter where you are, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, no matter what you do, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करते हो, His will for you is to walk in absolute, unquestionable victory in the name of Jesus. उसकी इच्छा आपकी जिंदगी के लिए ऐसी जय है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। Well, then the question comes, तो फिर सवाल ये है, how can we walk in that victory? हम कैसे उस जय में जिएं? Should we beg God to give us victory? क्या हम परमेश्वर से भीख मांगे कि वो हमें जय दे? Should we fast more? क्या ज्यादा उपवास करें? What should we do that we can walk in this victory? हम क्या करें कि हम इस जय में चल पाएं? Tonight I want to teach you something that is more precious than any gold and silver. आज रात मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं जो किसी भी सोने या चांदी से कई ज्यादा कीमती है। And if you can learn that tonight, और अगर आज रात आपने ये सीख लिया, your life will be filled with the evidence of victory after victory after victory after victory after victory in Jesus' name. तो आपकी जिंदगी में जय पर जय पर जय पर जय के सबूत भरे हुए होंगे यीशु के नाम में। Is there anybody in Arunachal who wants to live in victory? Show me your hand. If क्या you say, अरुणाचल में कोई है जो अपने जीवन में जय में जीना चाहता है? Amen. You know what?
more than you desire victory, your heavenly Father desires victory for you. जितना आप जय में जीना चाहते हो उससे कई ज्यादा आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप जय में जियो। You were born for victory. आप जय के लिए पैदा हुए हो। You were born for dominion. आप प्रभुता करने के लिए पैदा हुए हो। See, until you understand why you were created, you cannot function fully for what you were created for. जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप किस लिए बनाए गए, तब तक आप पूरी तरह वो नहीं कर पाओगे जिस लिए आप बने हो। So many people say we were created to worship God. बहुत से लोग कहते हैं हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बने हैं। Yes, we will worship Him for eternity. हाँ, हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे। That is our greatest privilege. ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। But the Bible does not teach us that we were created for the sole purpose of worshiping God. लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम इस एकमात्र मकसद से बने कि हम परमेश्वर की आराधना करें। Because God has trillions of angels in heaven who can worship God much better than we do. क्योंकि परमेश्वर के पास करोड़ों स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में जो हमसे बहुत अच्छी आराधना करना जानते हैं। So it was not that God wanted more worship leaders, so He created humans. तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को वर्शिप लीडर्स चाहिए थे इसलिए उसने मनुष्य को बना दिया। Anybody wants to know why we were created? कोई जानना चाहता है हम क्यों बनाए गए? Right? Now don't take me wrong. मुझे गलत मत समझना। I love worship. मुझे आराधना से प्यार है। I'm a worshipper myself. मैं खुद भी आराधना करता हूँ। But when God created mankind, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, the Bible says God spoke to Himself. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप से कहा। He said, "Let us make man in our own image and likeness." उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। Let us make man in our own image and likeness. आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। And let them have dominion. और उन्हें प्रभुता करने को देते हैं। What was the first thing that God thought when He thought about creating humans? परमेश्वर ने सबसे पहली क्या बात सोची जब उसने मनुष्य को बनाया? First thing, पहली बात, it was dominion. वो प्रभुता थी। He created you to walk in dominion. परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने के लिए बनाया है। Let me say that again. दोबारा कहता हूं, I said God created you to walk in dominion. मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको प्रभुता करने के लिए बनाया है। Now what does that even mean? पर इसका मतलब क्या है? What does it mean to walk in dominion? प्रभुता करने का मतलब क्या है? This word dominion comes from the Hebrew word radah. ये जो प्रभुता शब्द है इब्रानी के रडा शब्द से आता है। And that means to bring everything under your feet. और इसका अर्थ है सब बातें तुम्हारे पांव के नीचे हो जाना। To bring everything under your feet. सब बातों को तुम्हारे पांव के नीचे कर देना। Psalm chapter 8 verses 4 onwards, the Bible says, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him?" भजन 8 उसके 4 से आगे लिखा कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है, तू उसका ध्यान रखता है। Verse 5, can you put verse 5? Verse 5. और 5वीं आयत, For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। The word here, angels, is not actually the word angelos. It's not the word angels, it's the word Elohim, that means God. यहां पर स्वर्गदूत शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, परमेश्वर का एलोहीम शब्द परमेश्वर जिसका मतलब है वो इस्तेमाल किया That's गया। why the Hindi translation is good translation. इसीलिए हिंदी में यहां पर सही लिखा है। तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। You have made them little lower than God. Little lower. थोड़ा कम। It's high time you know who you are in Christ Jesus.
अब टाइम आ गया कि आप जान लो कि आप मसीह यीशु में कौन हो। Next verse. You have made him. What does the Bible say? Bible Now क्या कह here रही है? again, Bible teaches us why we were created. बाइबल फिर से यहां पर हमें सिखा रही है कि हम क्यों बनाए गए। You have made him to have dominion. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. That is the definition of dominion. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। यह प्रभुता का मतलब है। So I got saved. मैंने उद्धार पाया। I became a worship leader. मैं एक वर्शिप लीडर बन गया। I used to lead worship on Sundays, मैं संडे को वर्शिप लीड करता, but then live a defeated life from Monday till Saturday. लेकिन फिर मंडे से सैटरडे तक हारा हुआ जीवन जीता। I knew all the songs मुझे सारे गाने पता थे at that time, उस समय, but there was no evidence of victory in my life. पर मेरी जिंदगी में जय का कोई सबूत नहीं था। I was still depressed. मैं तब भी डिप्रेस था, I was suicidal. आत्महत्या करना I चाहता था, was sick. बीमार था, I was in debts. कर्जों में था, I had low self-esteem. मैं अपने आप को बहुत कम समझता था। I used to love Jesus, मैं यीशु से तो प्यार करता था, but I was living a defeated life. लेकिन एक हारा हुआ जीवन जी रहा था, Until God had to open my eyes. जब तक परमेश्वर ने मेरी आंखें नहीं खोली। So I want to teach you something that will really help you live a victorious life. तो मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो सच में आपकी मदद करेगा एक जयवंत जीवन जीने में, Because this is your heavenly Father's will for you. क्योंकि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए। 1 John 5:4 says, Whosoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. पहला यूहन्ना 5 उसके 4 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो सब बातों पर जय पाता है, और ये है वो जय जिससे हम जय पाते हैं, हमारा विश्वास। This is the victory that overcomes the world, even our faith. ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है, हमारा विश्वास। क्या चीज है जो संसार पे जय पाती है? हमारा यानी अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप कभी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। That means if your faith is weak, you can never live a victorious life. अगर जयवंत जीवन जीना है तो अपने विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसमें परिपक्व होना पड़ेगा। If you want to live a victorious life, you have to strengthen your faith, you have to mature in faith. Amen. कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? You want to please your heavenly Father. If you have the desire, I want to please my Father. Come on, show me your hand. कितने लोग हैं जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, जिनकी ये चाहत है अपने स्वर्गीय पिता को मैं खुश करना चाहता हूं। Okay. आप जानते हैं बहुत सारे मसीहों से जब आप मिलोगे, उन्हें लगता है ज्यादा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। You know, when you meet many believers, they think God is pleased by more fasting. मैं ज्यादा उपवास करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। If I fast more, if I pray more, God will be pleased. आप जानते हो फरीसी बहुत उपवास करते थे। Do you know Pharisees used to fast a lot? हफ्ते में मिनिमम 3 बारी 3 दिन एक हफ्ते में उपवास करते थे। Minimum 3 days a week, Pharisees used to fast. लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते थे। They would pray long prayers. और जब यीशु ने उनको देखा तो कहा, सांप के बच्चों। But when Jesus saw them, he said, brood of vipers. हम लोग उपवास और प्रार्थना एक रीति रिवाज की तरह, एक रिलीजियस रिचुअल की तरह भी कर सकते हैं। We can fast and pray as a religious ritual, as a duty. Without faith. बिना विश्वास के। आप जानते हैं, can you put Hebrews 11:6? इब्रानी 11 उसका 6 वचन कहता है,
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. The word says, without faith, it is impossible to please God. क्या है? क्या है? अरुणाचल सो तो नहीं गए आप? अभी तो टाइम है सोने में. हाँ, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव, इम्पॉसिबल है. बाइबल ये नहीं कह रही मुश्किल है, बाइबल कह रही है इम्पॉसिबल है. यानी अगर विश्वास नहीं सीखोगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा आपसे. The Bible does not say it is difficult, but the Bible says it is impossible to please God without faith. So if you do not learn faith, you cannot please God. सो अब सवाल ये है कि अगर विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो अब मुझे सीखना है कि मैं विश्वास में कैसे बढ़ूं ताकि परमेश्वर मेरे द्वारा प्रसन्न हो. So then the pursuit is, if God is pleased by faith, how can I learn faith that God will be pleased with me? मैं आज आपको एक बात सिखा दूं Let me teach you one thing कि today. विश्वास एक सबसे जरूरी शिक्षा है एक मसीह के लिए. That faith is the most important teaching for a believer. अगर आपने ये नहीं सीखा, आप चर्च जाओगे, आप आराधना में डांस भी करोगे, आप सरमन सुनोगे, आप घर जाओगे मगर फिर एक हारा हुआ जीवन जियोगे. If you do not learn this, you will go to church, you will dance during worship, you will hear the sermon, go back home and live a defeated life. बाइबल हमें बताती है इफिसियों 2:8 में कि हमारा उद्धार विश्वास से हुआ. Bible tells us in Ephesians 2:8 we were saved by faith. मरकुस 5:14 में बाइबल हमें बताती है कि हम जो चंगे होते हैं विश्वास से चंगे होते हैं. Mark 5:14 tells us we are healed by faith. सो विश्वास से हमारा उद्धार होता है. By faith we are saved. विश्वास से हम चंगाई पा सकते By हैं. faith we can be healed. हमने पढ़ा विश्वास से हम लोग जय में चल सकते हैं. We read by faith we can walk in victory. सो अगर विश्वास से इतनी सारी चीजें होती हैं तो अब हमें सीखना है कि विश्वास में हमें कैसे बढ़ना है. So if so much can be accomplished by faith, we should learn how we can live in faith. आप जानते हैं विश्वास में बढ़ना कितना आसान है. Do you know how easy it is to grow in faith? बाइबल कभी नहीं कहती विश्वास उपवास करके आता है. The Bible never says that faith comes by fasting. एक तरीका है विश्वास के आने का. There is one way faith comes. क्या सीखना चाहते हैं आप आज? Do you want to learn today? So that you may become champions of faith and you can uproot every mountain in your life. ताकि आप विश्वास के योद्धा बन जाओ और अपनी जिंदगी में आने वाले हर एक पहाड़ को उखाड़ फेंको. The Bible says in Romans 5:17, faith comes. बोलो faith comes. विश्वास आता है. विश्वास कमाया नहीं जाता, विश्वास आता है. विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है. क्या सुनने से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. Faith cannot be earned. Faith comes by hearing what? The word of God. I'm sorry, Romans 10:17. I said 5:17. Yeah. So faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है And hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने से. अब ध्यान से सुनो. बहुत सारे विश्वासी लोग आजकल क्या करते हैं? Now hear carefully what many believers do. जब वर्शिप होता है तो करें ओ तेरी जय जयकार. In worship they will dance, they will They will praise. dance, they'll celebrate. आनंद मनाएंगे. मगर जब वचन का प्रचार होता है But when the word is being preached, तो वो वचन को आदर नहीं करते. they do not honor the word. Some of the people, when you see them during worship, you'll feel if there is any passionate worshiper, it's this person. कुछ लोगों को तो आराधना के टाइम देखोगे तो आप बोलोगे अगर कोई सच्चा आराधक है तो यही है. If anybody loves Jesus, it's this person. अगर कोई है जो यीशु से सच्चा प्यार करता है तो यही है. But when the word is sent to them, लेकिन जब वचन उनके लिए भेजा जाता है, सुनिए,
We have to come to a right balance. हमें एक सही जगह पर संतुलन में आना है. आराधना, बोलो आराधना परमेश्वर के लिए है, वचन मेरे लिए है. फिर से बोलो आराधना So worship परमेश्वर के लिए is है, for God. वचन Word मेरे लिए है. is for me. तो अगर आप परमेश्वर को वो दोगे जो परमेश्वर को देना है, और फिर परमेश्वर जो वचन आपको भेजता है अगर आप वो नहीं लोगे तो हमेशा हार में जियोगे. So if you give to God what belongs to God, the worship, and when God gives you His word and you don't take that, you will always live in defeat. क्योंकि उसका वचन कहता है I have sent my word and healed your diseases. Because His word says, मैंने अपने वचन को भेजा है और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है. आज रात Tonight, अगर ध्यान धरकर वचन सुन रहे हो तो सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. tonight, if you are hearing the word carefully, you will be healed even when you are hearing the word. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई है, Because परमेश्वर in the के word वचन में छुटकारा है, is healing, परमेश्वर के वचन में बढ़ोतरी है, deliverance, परमेश्वर के वचन में increase, सामर्थ है, power, परमेश्वर के वचन में उसकी आत्मा है. His जो spirit. कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है. Whatever you need is in the word of God. तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझे समझ में आया कि जो गलत मैं कर रहा था वो ये था कि मैं उसके वचन का आदर नहीं करता था. Then God opened my eyes and I understood that I did not honor His word. The sad thing is, in this generation, there are so many young people who are growing up in a wordless Christianity. दुख की बात तो यह है कि इस पीढ़ी में बहुत से जवान लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं वचनहीन मसीहत में. They can hum the songs, they can sing the songs, they know God through a song, but they don't know God through His word. वो गानों को तो गाते हैं, गाने गुनगुना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते. उसके वचन के द्वारा गानों से जानते हैं परमेश्वर को. Let me tell you a secret. मैं एक रहस्य बताता हूं. You cannot sing the devil away. आप गाना गाकर शैतान को नहीं भगा सकते. Let me say that again. दोबारा कहता हूं, The worship is not for devil. आराधना शैतान के लिए नहीं है. कई जगह में जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती हैं, दुष्ट आत्माएं खेलती हैं, तो कई लोग आराधना करने लग जाते हैं उनके सामने. In some places when a demon manifests, some people start to worship in front of demons. और वो आराधना करते हैं और फिर दुष्ट आत्मा और डांस करती है. So they worship and the demon also dances. The worship was never meant for devil. आराधना कभी शैतान के लिए नहीं थी. वचन हमें बताता है जब यीशु मसीह का साक्षात्कार शैतान के साथ हुआ, उसका सामना शैतान के साथ हुआ, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस सी कॉर्ड दो मुझे, एक गाना गाते हैं. The Bible does not tell us that when Jesus encountered the devil, He did not say to Peter, play the C chord, I'll sing a song to the devil. यीशु ने नहीं कहा you have turned. क्या यीशु मसीह ने गाना गाया? Did Jesus sing a song? जब शैतान उसके सामने आया क्या यीशु मसीह ने गाना गाया? When he was face to face with the नहीं, devil? No. यीशु ने कहा Jesus said, लिखा It is है. written. That's the way you defeat devil. यही तरीका है शैतान को हराने का. That's the only way you can shut the mouth of devil and keep him under your feet. यही एक तरीका है शैतान का मुंह बंद करके उसको अपने पांव के नीचे रखने का. How? कैसे? When you fill God's word in your heart. जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरते हो. When you start to love and honor God's word. जब आप परमेश्वर के वचन को प्यार और उसका आदर करने लगते When हो. you meditate the word of God day and night. जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो. Hear this. सुनो, The word of God enters your heart like a seed. परमेश्वर का वचन आपके दिल में एक बीज की तरह जाता है. But the word of God comes out of your mouth like a double-edged sword. लेकिन वो वचन आपके मुंह से जब निकलता है तो दो धारी तलवार की तरह निकलता है. So दो तरीके के विश्वासी आपको मिलेंगे. So you will meet two kind of believers. एक First, जो जय में चलते हैं, who live in victory. एक Second, जिनकी बैंड शैतान ने बजा रखी है whom the devil has been constantly troubling in their और वो life. हमेशा बोलते हैं शैतान, And they always say, oh, devil this, शैतान ने ये किया है, devil did that, शैतान ने मेरे जीवन devil में किया. did that in my life.
और इसका एक ही कारण है, And there's only one reason. क्योंकि कुछ विश्वासी हैं Because there are some believers जिन्होंने अपने हृदय को वचन से भरा है, who have filled their heart with the word और of God. कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो केवल परंपराओं में और ट्रेडिशंस में हैं. And there are some believers that only live in traditions and rituals. So Arunachal, I have come अरुणाचल में आया हूँ so that you can become lovers of the word of God. ताकि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ. Young people, जवानों, you will love the worship, but you will love the word. आराधना से प्यार करो लेकिन वचन से प्यार करो. You will give to God what belongs to God. जो परमेश्वर का है उसे दो. But then when God sends his word to you, you will receive it with all his heart. फिर जब परमेश्वर अपना वचन आपके लिए भेजता है पूरे दिल से उसको ले लो. Amen. Amen. So मैं आपको बता रहा था कि जब मैं कलीसिया गया, I was telling you when I went to the church, और जब मैंने नहीं देखा कि बहुत सारे लोग जय में चल रहे हैं, तो मैंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा. मैंने कहा, प्रभु ऐसा क्यों है? and when I did not find many people walking in victory, I questioned and asked, Lord, why is that so? और वो मुझे मरकुस की किताब के 4थे अध्याय में ले गए. And he took me to the 4th chapter of the book of और Mark. प्रभु ने कहा, मैं आज तुझे इसका उत्तर दूंगा. And the Lord said, today I will answer you for this. और वहां पे उस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, And in that chapter, Jesus told a parable. और उसने दृष्टांत बताया एक बीज बोने वाले का. And he shared a parable of a sower. और उसने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, And he says, a sower went to sow the seeds. और कुछ जो बीज थे वो सड़क के किनारे गिरे. And some seeds fell by the wayside. कहाँ गिरे? Where? सड़क के किनारे. On the wayside. मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है? I asked the Lord, what does it mean? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. Let me ask you a आप जब question. यहाँ से जा रहे होंगे घर, आपको सड़क के किनारे में क्या गिरा हुआ मिलेगा? When you're going back home, what will you find on the wayside? सोना, Gold, चांदी, silver. क्या मिलेगा? What will you see? कचरा. Garbage. कचरा. Garbage. ये पहली कैटेगरी, ये पहली श्रेणी उन विश्वासियों की है जो परमेश्वर के वचन को कोई वैल्यू नहीं देते जब वो वचन सुनते हैं. This first category is those believers that give no honor to the word when they hear the word of God. सो जब परमेश्वर अपना वचन उनके जीवन में भेज रहा है, आप देखोगे वो फोन निकाल के बात कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और आत्मिक जहां में उनका हृदय सड़क के किनारे जैसी जगह है जहां पर वो बीज गिर रहे हैं. You will see when the word is being preached, they are talking, they are laughing, they are on the phone, they are distracted. In the spirit, their heart is like the wayside where the word is falling like it's garbage. सो भले ही वो इस बात को बोलेंगे नहीं, Even मगर though- अपने एक्शन से वो ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कचरा है, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर के वचन की कोई वैल्यू नहीं है. Even though they will never say it in their words, but in their actions they are saying that the word of God is like garbage to me, it has no value for me. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, And the Lord Jesus said, इन लोगों के जीवन में क्या होता है? what happens in their life? तुरंत शैतान आता है, Immediately the devil comes. और जो बीज बोया गया था And the seed that was sown, वो उठा कर ले जाता है. he takes it away. सो इससे पहले वो कलीसिया से बाहर निकले, So even before they could get out of the church, बीज दुश्मन चुरा ले गया. the enemy has stolen the seed. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज. I'll ask you a question today. अगर एक बीज भूमि के अंदर जाए ना, भूमि पे पड़े और कोई उसको चुरा ले, क्या वहां पे कभी फसल आएगी? What will happen if a seed is thrown on the ground and somebody steals it? Will there ever be a harvest? और कई विश्वासी ऐसे हैं जो 20 साल से 30 साल से And there are some believers for 20, 30 years, वो बीज कभी उनके अंदर गया ही नहीं, and that seed never went in their heart. इसीलिए That is कोई why. फल नहीं है. That is why there is no fruit in their life. वो रो रहे हैं, They are crying, उपवास कर रहे हैं, they are वो fasting, परमेश्वर से पूछ रहे हैं, क्यों प्रभु तू मेरे साथ कभी कुछ क्यों नहीं करता? they are asking God, why don't you ever do anything for me? तू सबके लिए करता है, मेरे लिए क्यों नहीं करता? You do things for everyone else but not for me. और इसका कारण ये है And the reason for that is कि उनका हृदय that their heart सड़क के किनारे की जगह की तरह है. is like the wayside. फिर हम यीशु मसीह ने बताया कई लोग हैं जिनका हृदय कठोर है, अलग अलग भूमि. फिर उसने आखिरी में बताया कुछ ऐसे
अच्छे हृदय के लोग हैं या अच्छा एटीट्यूड उनका है परमेश्वर के वचन के लिए कि जब बीज उनके जीवन में बोया जाता है वो अच्छी भूमि की तरह उसे ग्रहण करते हैं, वो बीज अंदर जाता है, उसके बाद उसके अंकुर आते हैं, वो बीज बढ़ता है और बहुत सा फल फलाता है। And then Jesus told about other kinds of hearts. Some are hardened, and then he says there is a good kind of heart. That is a person that sits with a good attitude to receive the word. When the word is sown and they receive it, and there is much fruit in their life, they have a mighty harvest because of the fruit of the word. So one thing that the Lord taught me that really changed my life was एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, that the quality of life you will live on this earth depends upon the attitude you have towards God's word. आप किस क्वालिटी का जीवन पृथ्वी पे जियोगे वो निर्भर करता है कि परमेश्वर के वचन को आप कैसी इज्जत देते हो। आप में से कई लोगों का जीवन इसलिए खराब नहीं है क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। Some of you are not living a terrible life because the devil is powerful. शैतान की गलती नहीं है उसमें। It's not the devil's fault. The word of God says in Hosea 4:6, "My people are destroyed for the lack of my knowledge." होशिया 4:6 में लिखा है मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश होते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा मेरे लोग इसलिए नाश हो जाते हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। God is not saying my people are destroyed because the devil is powerful. क्योंकि बहुत महंगाई है, Oh, because it's too क्योंकि expensive. बहुत things are- वायरसेस हैं। There are many viruses. नहीं, No. एक ही कारण है, Only one reason. क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। Because they do not have the knowledge of my word. सो आज एक निर्णय लो So tonight, make this decision. that you will start loving the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करने You लगोगे। will hold it close to your heart. आप उसको अपने दिल के You करीब will रखोगे। spend time in the word of God day and night. परमेश्वर के वचन में दिन रात समय कितने बिताओगे। लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं? How many of you want to be successful in life? Okay, God has already given us the answer. परमेश्वर ने पहले से इसका उत्तर हमें दे It's दिया a है। sure shot victory. ये पक्की जय है, गारंटी जय है। God told Joshua in Joshua 1:8, परमेश्वर ने यहोशू से बोला एक "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do all things that are written in it, for then you will make your way prosperous and you will have good success." व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पर दिन रात मनन करना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना। ऐसा करके तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा और अपने जीवन में प्रभावशाली होगा। It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है, It's easy. आसान है। All that you have to do is आपको बस इतना करना है, start to love the word. वचन से प्यार करना शुरू कर दो। This is not a religious book. ये धार्मिक किताब नहीं है, This is not a religious book. ये किसी धर्म की किताब नहीं है। This is the word of the living God. ये जीवित परमेश्वर का वचन I है। said this is the word of the living God. मैंने कहा ये जीवित परमेश्वर का It वचन है। carries the power of God. इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। Jesus said in John 6:63, "The words that I speak to you, they are spirit and they are life." यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है। Every time you are fellowshipping with the word, you are fellowshipping with the spirit of God, you are fellowshipping with the life of God. हर बार जब आप वचन के साथ समय बिताते हो आप परमेश्वर की आत्मा के साथ उसके जीवन के साथ समय बिताते हो। Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word. और परमेश्वर के वचन को सुनने से। So जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली इस बात को लेकर, When God opened my eyes to this truth, तो मैंने सोचा कि मैं अब परमेश्वर के वचन में समय बिताऊंगा। I decided I will spend time in the Word of God. और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ता नहीं गया मगर उस पर मनन करता गया, उसे अपने अंदर बार बार अपने आप से बोलता गया, हल्के हल्के करके बीमारियां जाने लगी, हल्के हल्के करके गरीबी जाने लगे, हल्के हल्के करके कर्जे जाने लगे। मैं एक जयवंत जीवन जीने लगा, एक जय से दूसरी जय से तीसरी जय देखने लगा। And as I started to meditate on the Word of God, I started to obey the Word of God. I started to see slowly and gradually sicknesses started to leave me, death started to leave me, and I started to see victory in every area of my life. मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, कितने लोग जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस जगह में? I'll ask you again, how many want to live a victorious life?
तो फिर ये जो वचन है आपको इसके प्रेमी हो जाना है. then become lovers of this word. कई विश्वासी हैं, कई मसीह लोग हैं, वो 3 इंजेक्शन लेने के लिए आते हैं साल में. Some- ECG Some believers come to take 3 injections in the year, ECG, चर्च में. in the church. जानते 3 इंजेक्शन कौन कौन से हैं? You know what 3 injections? E ईस्टर, C क्रिसमस और G गुड फ्राइडे. Easter, Christmas and Good Friday. और वो वैसे हैं जैसे रिश्तेदार, आपको रिश्तेदार शादी में मिलेंगे. कोई शादी होगी, कोई पार्टी होगी, उसमें रिलेटिव आते हैं. यीशु के रिश्तेदार नहीं बनना है, यीशु के प्रेमी बनना है. रोज मिलना है उससे, रोज. And they are like those relatives that you meet once in a blue moon in a wedding or a social gathering. Don't become relatives of Jesus, become lovers of Jesus. Meet him every day. आमेन. और केवल वचन को मनन करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करो तो जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे. आप बेस्ट होगे अपने फील्ड में. अगर आप स्कूल में हो, आप बेस्ट स्टूडेंट होगे. अगर आप डॉक्टर हो, आप बेस्ट डॉक्टर होगे. अगर आपका चर्च है, आपका बेस्ट चर्च होगा. अगर आप वर्शिप लीडर हो, आप बेस्ट वर्शिप लीडर होगे. नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल बी प्रॉस्परस. Just by meditating on God's word, you will be the best in whatever you do. If you're a student, a doctor, a pastor, whatever you will do, you will have the best of what you do. Amen. All that you have to do is start loving the word of God. बस ये करना है, परमेश्वर के वचन से प्यार करो. हर रोज रात को जब आप सोने जाते हो, Every night when you are about to go to sleep, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स हटा के एक आयत लो, परमेश्वर का वचन लो. टेक वन स्क्रिप्चर एंड पुट इट इन योर माइंड, रोल इट इन योर माइंड, स्पीक इट टू योरसेल्फ. अपने आप को उसको बोलो और बार बार लगातार उसको बोलते रहो. एंड देन गो टू स्लीप. take one verse from the Bible, speak to yourself, meditate on it, and then go into sleep. मैं आज आपको अपनी पर्सनल एक टेस्टमनी बताता हूँ. I will share my personal testimony with you. आपको आइडिया नहीं है You have no idea कितनी पावर परमेश्वर के वचन में है. how much power is in the word of God. एक एक वर्स में कितनी पावर है. In every single verse of the Bible there is so much power. एक स्क्रिप्चर में इतनी पावर है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकता है यीशु के नाम में. One scripture has so much power that it will change your generations in Jesus' name. जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग मिनिस्ट्री में आए, When me and my wife we stepped into ministry, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे. we were under many debts. बैंक के लोग कॉल करते थे The bank people used to call us. और आपको पता है वो कितने प्यार से आपसे बात करते हैं जब उन्हें कर्जा लेना होता है आपसे. And you know how lovingly they speak to you when you owe them जब a उन्हें debt. क्रेडिट कार्ड देना होता है तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं. When they want to sell you a credit card, they are very loving. मगर जब उन्हें कलेक्शन करना होता है तो वो और भी प्यार से बात करते हैं. But when they have to do collection, they are even more loving. सो हम लोग बहुत अलग अलग कर्जे हमारे जीवन में थे. So there were many different debts in our life. और एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था. रोज हमें बैंक से कॉल आते थे And every day we would get calls और from एक the दिन मैं bank. वचन पढ़ रहा था One day I was reading the word. और मैं इफिसियों की पुस्तक, आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ इफिशियंस. मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था. और इफिसियों की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आई स्टॉप्ड ऑन वर्स 3. आई कुड जस्ट रीड 2 scriptures and as I read verse 3 I could not read any further. और मैंने 2 ही आयत पढ़ी थी और जब मैंने तीसरा वचन पढ़ा तो मैं रुक गया, आगे नहीं पढ़ सका. And it said, और उसमें लिखा blessed था, be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. धन्य हो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है. क्या लिखा है वो देगा या लिखा है दे दी है? Does it Come say, on, बताओ मुझे क्या लिखा है? दे दी है. does it say he will give or has he already given it to us? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया. When I read this, I stopped. देखिए कई लोग बाइबल मनोहर कहानियों की तरह पढ़ते हैं. Some people read the Bible like a magazine. ओके, एक चैप्टर खत्म हो गया,
मैंने अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर दी। Oh, Hallelujah. I've finished one chapter. I have done my religious duty. Hallelujah. हम लोग सोचते नहीं है कि वचन में क्या लिखा है। We don't even think what is written in the word. वचन कह रहा था कि परमेश्वर ने तो हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या करी है, दे दी हैं। The word was saying that God has given to us all kinds of spiritual blessings already. जब मैंने ये सुना तो मैं कह रहा था कि When I प्रभु, read this, I तेरा said, वचन कह रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूं। when I read this, I said, Lord, your word is saying that I am blessed. तेरा वचन कह रहा है मैं ब्लेस्ड हूं, Your word says I am मगर blessed. मेरा जीवन तो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं दिखाई देता। But my life does not look blessed at all. I cannot look at my life and say my life is blessed. मैं अपनी जिंदगी को देखकर ये नहीं कह सकता था उस समय कि वो blessed है। But your word is saying लेकिन आपका वचन that कह रहा I am है blessed, कि मैं blessed हूँ, but I am not blessed. पर मैं blessed नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा प्रॉब्लम कहाँ है? So I said, where is the problem? तब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। Then I understood the problem is I do not believe the word of God. मैं अपनी परिस्थितियों पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करता हूं, पर परमेश्वर का वचन जो सत्य है मैं उस पर विश्वास नहीं करता। I believe in my circumstances, I believe in my feelings, but I do not believe in the truth of God's word. क्योंकि अगर कोई मुझे उस दिन पूछता कि क्या तू ब्लेस्ड है, मैं कहता बिल्कुल भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूं। Because if that day somebody asked me, are you blessed? I would have said not at all. That I am gonna believe what God's word says about me. कि मैं विश्वास करूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है, Whether I feel it or I don't feel it. चाहे मुझे ऐसा महसूस हो चाहे ना हो, Because the word of God is the truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के एक बिंदु भी ना टलेगा वचन का। Jesus said, heaven and earth can pass, but not even a dot of my word will pass. That's what many believers don't understand. बहुत से विश्वासी ये नहीं समझते। Just because it is written in the word does not mean it will happen with you automatically. वचन में लिखा है तो अपने आप नहीं होगा आपके साथ। वचन में लिखा है आपके लिए, It is written in the word for you. मगर अगर वचन में लिखा है जरूरी नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। But if it's written in the word, doesn't mean it will happen to you automatically. ध्यान से मेरी बात सुनो। Hear me carefully. वचन कहता है The word says, यूहन्ना 3:16 में, John 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। God so loved the world that he gave his only son for the world. कितने लोग मानते हैं इस बात को? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many of you believe this is क्या true? विश्वास करते हो Do कि you believe? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए देगा? क्या देगा? दे दिया। Will God give his son for the world? No, he already gave his son for the world. तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, So I ask you a अगर question. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया तो पूरा जगत का उद्धार अभी तक क्यों नहीं हुआ? If God has already given his son for the entire world, then why is not the entire world already saved? It's been already 2026 years, 2026 साल हो गए, but the entire world is not saved. अभी तक पूरी दुनिया का उद्धार नहीं हुआ। मगर परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। But God already gave his only son. Now hear this. सुनिए, किनका उद्धार हुआ? who God saved? जिन्होंने उस सत्य पर विश्वास किया Anyone who believed in that truth, God saved. और उस सत्य को ग्रहण किया, And received that truth. उनके साथ वो सत्य प्रगटीकरण में आ गया। To them that truth became reality. परमेश्वर का देना एक चीज है, आपका उसे विश्वास से ग्रहण करना दूसरी चीज है। God giving something is one thing, but you receiving it by faith is another thing. परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप मसीह को मानने वाले हो, अगर आप विश्वासी हो, तो बाइबल कहती है उसने आपको सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। If you are a believer, if you believe in Jesus Christ, the Bible says God has already blessed you with every spiritual blessing. That means you never have to fast that God bless me. इसका मतलब आपको दोबारा कभी उपवास करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ब्लेस करो। If you are fasting that God will bless you, you are ignorant. अगर आप फास्ट कर रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस करो तो आप अनजान हो। अगर मैं आज उपवास करूं, ओ प्रभु अपने पुत्र को भेज कि वो क्रूस पे जाए, क्या प्रभु भेजेगा अपने पुत्र को? क्यों? क्योंकि वो भेज
चुका है। If I fast today, God send your son on the cross, will he send his son again? No, because he has already sent him. जैसा वो अपने पुत्र को भेज चुका है, वैसे ही वो आपको सारी आशीषों से आशीषित कर चुका है। Just as he has already sent his son on the cross, similarly he has already blessed you with every blessing. जैसे आपने उसके पुत्र को ग्रहण किया, वैसे ही आपको इस सत्य को भी ग्रहण करना है। Just as you received his son, similarly you have to receive this truth. सो मैंने क्या किया, हर रोज मैं अपने कमरे में गया। So what I did, I went to my room every day. पहले दिन First day, 3 घंटे 3 hours. मैंने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी, I did not beg God. मैंने किसी दोस्त से भीख नहीं मांगी, I did not beg a friend. मैं किसी इंसान के पास नहीं गया हाथ फैलाने, I did not go to any man to ask for anything. मैं परमेश्वर के वचन के पास गया। I went to the word of God. मैंने अपने कमरे के आगे अपनी बाइबल को खोला, I opened my Bible in my room, इफिसियों 1:3 के आगे खोला, opened it at Ephesians 1:3, और मैं बार बार उसको अपने आप को बोलने लगा। and I kept saying it to myself again मैंने and उसे again. पर्सनलाइज कर दिया। I made it for myself. I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. मैंने कहा, मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता धन्य है कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। And I said it to me again. और मैंने अपने And आप I से said कहा, it to me again. फिर से कहा, और मैं अपने आप से कहता रहा। I kept saying it to Oh, I myself. said I am blessed. मैं धन्य हूँ। Not मैं because I blessed हूँ। feel blessed. क्योंकि मुझे फील होता है, Not इसलिए because I नहीं। have money in my account. इसलिए कि अकाउंट में पैसा I है। am blessed. मैं blessed हूँ। Because God says I am क्योंकि blessed. परमेश्वर कहता है मैं blessed And हूँ। I am what God says I am. और मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ। And I did it again next day. और मैंने अगले दिन फिर से यही किया। And for next 3 months, अगले 3 महीने तक I only stayed in Ephesians 1:3. मैं सिर्फ इफिसियों 1:3 में रुका रहा। मैं सुबह और शाम इफिसियों 1:3 पर मनन करता। Day and night I meditated on मैं इफिसियों 1:3. 1:3 के साथ सोता, इफिसियों 1:3 के साथ उठता। I would sleep with Ephesians 1:3, wake up with Ephesians 1:3. पूरे दिन में मैं जहां जाता इफिसियों 1:3 में मनन करता। All day long, wherever I went, I meditated on Ephesians I kept 1:3. telling my heart, मैं अपने दिल से बोलता I रहा, am blessed. मैं blessed हूँ। Oh, I am blessed. Oh, मैं blessed हूँ। Oh, I am Oh, blessed. मैं blessed हूँ। With every spiritual blessing. सब आत्मिक आशीषों I से am blessed. मैं blessed हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा, What did God say? If you meditate on my word day and night, तो तू सफल हो जाएगा। then you will be successful. You will make your way prosperous. तू अपने रास्ते को समृद्ध बना देगा। और जैसे मैं, hear this, सुनिए, the written word was designed so that the written word will lead us to the living word. लिखित वचन इसलिए बनाया गया कि वो हमें जीवित वचन तक ले जाए। जो लिखित वचन है वो लोगोस है, The written word is the logos. जो जीवित वचन है वो रेमा है। The living word is the rema. जैसे आप लिखित वचन के ऊपर मनन करते रहोगे, As you meditate on the written word, oh lo and behold, you will have an encounter with the rema word of God. आपका सामना हो जाएगा उस जीवित वचन के साथ। और जैसे मैं वचन पे मनन कर रहा था, And as I was meditating on the word, day and night, रात और दिन, एक दिन मेरे कमरे में मुझे एक तेज आवाज परमेश्वर की आई। one day I heard the loud voice of God in my room. I don't know if it was audible, मुझे नहीं पता सुनाई देनी थी। like if you were in my room you would have heard it or not, I don't know, अगर आप मेरे कमरे में होते आप सुनते या नहीं मुझे नहीं पता, but it was pretty audible to me. पर मुझे अच्छे से सुनाई दी। And God said, my son, और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, today I make a covenant with you. आज मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। As long as you live, जब तक तू जिएगा, you will never see lack in your life. तू कभी अपनी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखेगा। And from that day till today, it's been more than a decade and I do not know what lack means. और उस दिन से आज तक 10 साल से ऊपर हो गया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती I है। am living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ। I'm living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ। Not because my uncle is a businessman.
इसलिए नहीं कि मेरे अंकल बिजनेसमैन है, not because I know a very important person, इसलिए नहीं कि मैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी को जानता हूँ, not because I won a lottery. इसलिए नहीं कि मेरी लॉटरी लगी I है, am living a blessed life मैं ब्लेस्ड जीवन जी रहा because हूँ, I believe the word which says I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि आज मैं उस वचन पर विश्वास करता हूँ जो कहता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ सारी आत्मिक ब्लेसिंग से मसीह यीशु में। You have to come to a place where you believe what the written word says about you. आपको वहां पर आ जाना है जहां पर आप विश्वास करते हो जो लिखित वचन आपके बारे में कहता है सच है। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? You know what the problem is? The problem is we rather trust our feelings than the word. समस्या है हम अपनी फीलिंग्स पे विश्वास करते हैं, वचन पर नहीं। Feelings will deceive you. फीलिंग्स आपको धोखा दे देंगी, Feelings go up and down. फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। The Bible says word of God abides forever. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है। John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us with your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 वचन कहता है, हे पिता अपने सत्य से हमें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। ध्यान से मेरी इस बात को सुनो। Hear carefully. कई आज विश्वासी जो रोते हैं, यीशु मुझे कब तू डिलीवर करेगा, कब सेट फ्री करेगा? Many believers they beg and they cry before Jesus, Jesus when will you set me free, when will you Jesus deliver? set me free. यीशु मुझे आजाद करो। Well, Jesus will set you free exactly the way he said he will set you free. यीशु आपको वैसे ही आजाद करेगा जैसा उसने कहा कि वो आपको आजाद करेगा। और कैसे यीशु ने कहा वो आपको आजाद करेगा? How did he say he will set you free? उसने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। He said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. So hear this. सुनो, For every deliverance there is a truth. हर एक छुटकारे के पीछे एक सत्य होता है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता For हूँ, every deliverance that you need there is a truth that you have to believe. हर एक छुटकारा जो आपको चाहिए उसके लिए एक सत्य है जो आपको विश्वास करना पड़ेगा। मुझे कर्जों से छुटकारा चाहिए था। I needed deliverance from loans, from debts. कैसे यीशु ने मुझे छुटकारा दिया? How did Jesus अपने deliver वचन me? का सत्य बताकर। By telling me the truth of God's word. Because hear this. सुनिए, What you are going through right now is a fact. जो आप अभी झेल रहे हो जिंदगी में वो एक फैक्ट है। वो एक तथ्य है। It's a fact. वो क्या है? A fact is something that you can touch with your, it's you can see it with your five senses. You can know it with your five senses. A fact वो एक ऐसी चीज है जो अपने 5 सेंसेस से आप देख सकते हो, परख सकते हो, जान सकते हो। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं, What you are going through in your life right now is a fact. आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक फैक्ट है। What God's word says is the truth. जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है वो सत्य है। Facts keep changing. Truth is eternal. फैक्ट्स बदलते रहते हैं, सत्य हमेशा एक रहता है। And what you have to do is you have to bring your fact and submit it to God's truth. और आपको यह करना है अपने फैक्ट को लाके परमेश्वर के वचन के सत्य के नीचे रख देना है उसको। And the truth of God's word will swallow your fact. और परमेश्वर के वचन का सत्य आपके फैक्ट को खत्म कर देगा, खा जाएगा उसको। कम विश्वासी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, और भी कम है जिन्हें पता है वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। There are few believers that read the word and even fewer who know how to use the word. We don't read the Bible to get PhD. हम PhD करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते। Full head damage. For full head damage. You know PhD? I'm just kidding. We read the Bible so that we learn how to send the word. हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम सीखे कैसे वचन को भेजना है। Amen. आमेन। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें, सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. You don't feel the truth, you believe the truth. Many believers are trying to feel the truth. बहुत से विश्वासी फील करना चाहते हैं ट्रुथ को।
You don't feel the truth. आप ट्रुथ को फील नहीं करते, You believe the truth. आप ट्रुथ को मानते हैं. I started to believe I am blessed when nothing in my life looked like a blessing. मैं विश्वास करने लग गया कि मैं ब्लेस्ड हूं जब मेरी जिंदगी में कुछ भी ब्लेस्ड नहीं दिख रहा था. परमेश्वर एब्राम को बोला, जो एब्राम और उसकी बीवी साराई बांझ थे, उनके कुछ बच्चे नहीं थे, और उस समय परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और कहा तेरा नाम एब्राहम है. God called Abram and Sarai that had no children. Sarah was a barren, and God said, "Your name is Abraham." जब परमेश्वर ने उसका नाम एब्राहम किया, उसके कितनी संतानें थी? When God, Zero. when God changed his name to Abraham, how many children did he have? Zero. जीरो. इब्राहिम ने ये नहीं कहा प्रभु देख मेरे तो कोई संतान नहीं है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया. पहले वो अब्राहम परमेश्वर ने बना दिया, तब उसके बच्चे मैनिफेस्ट होने लगे. First, God did not give him children. First, God changed his name to Abraham, and then his children started to be in reality. If you want to live in victory, you will have to believe God's word. अगर आप जय में चलना चाहते हो, आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा. मैं आपको एक जीवित गवाही बताता हूं जो Let me- परमेश्वर ने करी. Let me tell you a true testimony that God did. एक व्यक्ति हैं जिनको कैंसर हुआ, There's a person who had cancer, और वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनका दोस्त परमेश्वर को जानता था. and he did not know the Lord. His friend knew the Lord. और डॉक्टर ने उनको कहा तेरे पास अब केवल 3 महीने बचे हैं जिंदा रहने के लिए. And the doctors told him, "You only have 3 months left to live." तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मैंने पूरी जिंदगी मैंने अपने बनाने वाले परमेश्वर को मैंने नहीं जाना, मैं अब उसको जानना चाहता हूं. तो उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया. So he told his friend, "All my life I did not know the God, my maker." So he gave his life to God. और उसने कहा मेरी मरने से पहले एक इच्छा है कि मैं पूरी बाइबल को पढ़ना चाहता हूं. And he said, "I have one desire before I die. I want to read the entire Bible." तो उसने कहा मुझे एक बाइबल दे, So he मैं said- जेनेसिस से उत्पत्ति से बाइबल पढ़ना चाहता हूं. He said, "Give me a Bible. I want to read it from Genesis." उसके दोस्त ने कहा नहीं, तू उत्पत्ति से मत पढ़, तेरे पास इतना समय नहीं है, तू मर जाएगा, तू रेवलेशन तक नहीं पहुंचेगा, तो तू मैथ्यू से पढ़. His friend told him, "No, you don't have so much time left. You will die in the midway. So you better start from Matthew." उसने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा जब तक मैं पूरा प्रकाशित वाक्य ना पढ़ दूं. He said, "No, God will keep me alive until I finish till the book of Revelation." सो वो पढ़ने लगा. He started to read. फिर वो यिर्मयाह की पुस्तक में पहुंचा. So he reached the book of Jeremiah. And in the book of Jeremiah, there's a verse where it says, "Is there no word of the Lord for me?" और यिर्मयाह की किताब में एक वचन में लिखा है, क्या यहोवा का मेरे लिए कोई वचन नहीं है? और वो आगे नहीं पढ़ा, उसने रोक दिया. उसने कहा प्रभु, And he stopped there. He did not read further. उसने कहा प्रभु क्या मेरे लिए आज कोई वचन नहीं है? He said, "Lord, don't you have a word for me today?" और परमेश्वर ने कहा, वो हॉस्पिटल में था, प्रभु ने कहा तू बाहर जा पार्किंग में. He was in the hospital and the Lord said, "Go out in the parking." और वो बाहर गया, He came out. और एक व्यक्ति वहां पे गाड़ी में आया, और उस व्यक्ति ने उनको कहा परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन आपके लिए डाला है. And he came out in the parking and the man came in his car and said, "God has put a word in my heart for you." और उन्होंने कहा Isaiah 53:5. And he said, यशायाह 53 उसका 5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. और वो व्यक्ति चला गया कार ले. And that man went away. और in the car. ये जो व्यक्ति था ये चिल्लाने लगा, But this man started to मुझे scream, परमेश्वर का वचन मिल गया. "I have got the word of God." ये गया, He went. इसने अपनी बाइबल में वो वचन हाईलाइट किया, He highlighted that verse in और his इसने Bible. और ये अब बोलने लगा, And he started उसके to say, कोड़े खाने से By his stripes मैं चंगा हो चुका हूँ. I have been healed. ये डॉक्टर के पास गया, He went to the बोला, doctor. "Doctor, Said, "Doctor, उसके कोड़े खाने से by his stripes मैं चंगा हो चुका हूँ." I am healed." सपने स्किप नहीं, सिप करो. सिंपली विजिट kotakmf.com. By his stripes मैं चंगा हो चुका हूँ. I am healed. तो डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम्हारा टेस्ट करते हैं. Doctor said, "Let us test." टेस्ट किया गया, They tested. पता चला कैंसर और फैल गया शरीर में. Found out cancer has spread more in the body.
What do you do आप क्या करोगे when you do not see what the word says? जब आप वो नहीं देखते जो वचन में लिखा है आपके लिए? That's the fight of faith Bible talks about. ये विश्वास की लड़ाई है जिसके बारे में बाइबल कहती है. And the Bible says, hold fast your confession of faith without wavering. और बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को पकड़ के रखो, हिलो मत उससे. तो डॉक्टर ने उनको बोला, डॉक्टर सेड कि तेरा कैंसर कोई ठीक नहीं हुआ, तेरा कैंसर तो और फैल गया तेरे शरीर में. डॉक्टर सेड योर कैंसर इज नॉट हील्ड, इट हैज देख स्प्रेड मोर. रिपोर्ट में लिखा है. He said look, it's in the report, written in उसने the कहा report. रिपोर्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. He said whether it is written in the report or not, but it is written in God's word that I am healed by the stripes of Jesus. डॉक्टर ने कहा ये पागल हो गया. Doctor said he's lost वो his mind. सुबह शाम इस वचन पे मनन करता, इसकी घोषणा करता कि पर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. Day and night he would meditate on God's word. He would speak, declare it. I am healed by the stripes of Jesus. उसने डॉक्टर को कहा मुझे डिस्चार्ज कर दो. He said to the doctor, discharge me. डॉक्टर ने कहा तू 1 महीने में मर जाएगा. Doctor said you will die in a month. उसने कहा कोई बात नहीं. He said it's वो okay. डिस्चार्ज लेकर घर चला गया. He took discharge, went 1 home. महीना हो गया नहीं मरा. 1 month वचन की passed, घोषणा did करता not रहा. die. 2 महीने हो गए नहीं मरा. 2 months 3 went, he महीने did हो not गए die. नहीं 3 मरा. months went, did 4 die. महीने हो गए नहीं 4 मरा. months did not 5 die. महीने हो गए 5 नहीं मरा. months did not die. 6 महीने हो गए नहीं मरा. 6 months did not die. अब डॉक्टर ने इसको बोला आ तू जिंदा कैसे, तेरा हम लोग चेकअप करेंगे. So the doctors called him. Surprisingly, he said, "How are you alive? Come, we will test you." वापस हॉस्पिटल गया. He went to the ब्लड hospital, टेस्ट लिया. did a blood test. जब रिपोर्ट आई When the report तो came, उसमें लिखा था कोई कैंसर नहीं है, पूरी रीति से चंगा हो चुका था. it said no cancer. He was completely healed. That's the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य If है. you stand on the word of God without wavering, अगर आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़े हो गए बिना डगमगाए, आपका उत्तर वचन में है. your answer is in the word. Jesus said, if my word abides in you and if you abide in my word, he said, ask whatever you desire and it shall be done for you. यीशु ने कहा अगर मेरा वचन तुम में है और तुम मेरे वचन में बने रहो तो मांगो जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे लिए वो हो He didn't जाएगा. say, ask what you need. He उसने- said, ask what you desire. उसने ये नहीं कहा मांगो जो तुम्हारी जरूरत है, उसने कहा मांगो जो तुम चाहो और वो तुम्हें मिल जाएगा. Tonight I want to encourage you. आज रात में आपको If you प्रोत्साहित want to करना live a चाहता हूं. victorious life, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो, आप जानते हैं मैं एक बहुत छोटे शहर में, गांव में कह लो आप, वहां मेरा जन्म हुआ. and I was born in a very small town. You can even call it a village. That's where I was born. और जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, And when God called me for ministry, तो मैं उसके वचन पर पढ़कर जो लिखा था मैंने कहा प्रभु मैं मानूंगा. I said, whatever is written in your word, Lord, I will believe it. और प्रभु ने एक दिन मुझे बोला, प्रभु ने कहा मैं तुझे देशों में लेकर जाऊंगा और तू इंग्लिश में प्रचार करेगा. मैंने कहा प्रभु मुझे इंग्लिश के 2 शब्द भी बोलने नहीं आते. And one day the Lord told me, I will take you into nations and you will preach in English. And I said, Lord, I can't even speak 2 words of English. प्रभु ने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा. The Lord said, I will teach you. John 14:26 says, Jesus said, the helper which Father will send in my name will teach you all things and will bring into your remembrance all things that I've said to you. यूहन्ना 14:26 उसका वचन कहता है, यीशु ने कहा जो सहायक पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने कही हैं. His word says, ask and I will give nations to be your inheritance. उसका वचन कहता है मांग और मैं देशों को तेरी विरासत में तुझे दे दूंगा. और जो वचन में लिखा है What is it? आज मैं उसको जी रहा हूं. केवल क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन पर विश्वास करना शुरू किया. मैं उसके वचन पर विश्वास करने लगा और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर जो वचन में लिखा है आप उसमें अड़िग खड़े हो जाओ कि अगर लिखा है तो ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है. And today I am living what is written in His Word, and I'm telling you this so that you can stand in this, that what is written in the Word is for me and for my family.
अभी दिल्ली में हम ऐसी अद्भुत गवाहियां देख रहे हैं हर संडे। We are seeing such marvelous testimonies every Sunday. आप जानते हैं बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई अपने वचन के द्वारा बनाई। You know, the Bible says, whatever God made, He made it by His word. जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया Whatsoever God has made, सब उसके वचन के द्वारा आया। everything came by His word. आदि में जब कुछ नहीं था, जब पहाड़ नहीं थे, जब ये ग्रह नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तो आदि में वचन था। In the beginning, when there were no mountains, no planets, when there was nothing, the word existed even then. And the word is the creative force of God. और वो वचन परमेश्वर की रचना करने का वो सामर्थ्य है। और हमारी कलीसिया में एक स्त्री आई And a woman came to our church जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकाल दिया गया था, whose gallbladder was removed by surgery. और वो वचन सुन रही थी, उसके अंदर विश्वास आया। She was hearing the word and faith came in her heart. और मैंने एक मैसेज में बोला that before God is a healer, he is a creator. In one message I had said, इससे पहले कि परमेश्वर चंगा करता, वो सृष्टि करता, बनाने तो वाला वो है। कहने लगी, प्रभु तू केवल चंगा करने वाला नहीं है, तू सृजन करने वाला भी है, तू मुझे एक नया गॉल ब्लैडर दे सकता है। She said, Lord, you're not just a healer, but you're also the creator. You can give me a brand new gallbladder. ओके, अब मैं आपको यहाँ कहानियां सुनाने नहीं आया, कई लोग हंस रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको these are medically verified testimonies. I have not come to tell you tales or stories. ये medically verified report के साथ गवाहियां हैं। You know why so many Christians don't believe in these testimonies? Because they serve a dead Jesus. पता है क्यों बहुत सारे मसीह लोग इन गवाहियों को नहीं मानते? क्योंकि वो एक मरे हुए यीशु की आराधना They are करते in a हैं। dead religion, dead religious Christianity. वो मरे हुए ईसाई धर्म में जीते हैं। But I have not come here to preach about a dead religion. I have come to preach about a living God. The Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever, and He never changes. पर मैं यहाँ पर मरे हुए जीसस के बारे में बताने नहीं आया। बाइबल कहती है वो यीशु जिंदा है, कल, आज और हमेशा जीवित है वो। So हर रोज रात को 12 से सुबह 3 बजे तक वो Isaiah 53:5 लेती थी। Every night 12 to 3 she would speak उसकी Isaiah घोषणा करने 55, and she would declare. और उससे हमने फोन में वॉलपेपर लगा दिया एक गॉल ब्लैडर का। She put a wallpaper in her phone of a gallbladder. कहती प्रभु you are a creator, तू सृजन करने वाला She परमेश्वर। said, Lord, you are a creator. You are the God who created everything. और वो हमारे चर्च में आई She came to our church अपनी रिपोर्ट्स के साथ। with her वो report. अल्ट्रासाउंड कराने गई, She went for ultrasound. डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया Doctor did the और ultrasound. वहां पर एक नया गॉल ब्लैडर उसके शरीर में था। And there was a brand new gallbladder in her body. All things are possible for him who believes. विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये आप देख रहे हैं, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड है उस स्त्री का। You can see this is her gallbladder ultrasound from before and after. What is impossible for man is possible for our God. जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव और है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आप इस जगह में हो और आप अपना विश्वास आज बोलो कि परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ संभव है, तो आज आप अपने उत्तर के साथ इस जगह से जा रहे हो। And I'm telling you, if you are here today and you tell God everything is possible for you, then you will go back with your answer tonight. How many people here believe all things are possible for my Jesus? Show me your hand. कितने लोग ये मानते हैं मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव बोलो है? मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Say everything is possible for my Jesus. बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible for my Jesus. Hallelujah. Do you believe it? क्या आप ये मानते हो? Then let it be done for you tonight according to your faith. तो फिर आज रात आपके साथ आपके विश्वास के अनुसार हो। You are going back with your answer in Jesus' name. आप अपना उत्तर लेकर आज यहाँ से You are वापस जा going रहे हो। back with your testimony in Jesus' name. आप यहाँ से अपनी गवाही के साथ You जा are रहे हो going यीशु के back नाम with में। your healing in Jesus' name. आप अपनी चंगाई के साथ जा रहे हो यीशु के नाम में। Do you believe it? क्या आप मानते हो? Can you shout a loud जोर amen? से आमेन कहो। बोलो tonight is my night. बोलो आज मेरी रात है। और मैंने आपको केवल एक गवाही बताई, ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं। And I've just told you one testimony. There are so many testimonies like that. Where Jesus is doing mind-boggling miracles. जहाँ यीशु अविश्वसनीय चमत्कार कर रहे हैं। आप कई मसीहों को बोलते हुए सुनोगे, अरे ये वो करता था, आज के टाइम में नहीं करता। You will hear some believers talk like this. Oh, God used to do it, now He doesn't do it.
सो अगर करता था और आज नहीं करता, if he used to do and now he does not, then his name will not be I am, his name will be I was. तो फिर उसका नाम मैं हूं नहीं होना चाहिए, उसका नाम मैं था होना चाहिए। तू चंगा करता था, तू चंगा करता था नहीं, मगर वो चंगा करता है, वो चंगा करता है। Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, and he never changes. यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है और वो कभी नहीं बदलता। Hallelujah. हालेलुया। And that Jesus is in our midst tonight. और वही यीशु आज हमारे बीच में है। And if Jesus is in our midst tonight, और अगर यीशु यहाँ पर है, then it's a night of तो miracles. चमत्कारों की रात है। It's a night of signs and ये wonders. चिन्ह चमत्कारों की रात है। It's a night of ये healing. चंगाइयों की रात है। Hallelujah. You are going back with your miracle. आप अपने चमत्कार को लेके जा रहे हो आज यहाँ से। You are going back with your miracle. आप अपने चमत्कार के साथ जा रहे हो You आज are यहाँ going से। back with your healing. अपनी चंगाई को लेके जा रहे हो आज। Do you know that there are no incurable sicknesses that Jesus cannot heal? क्या आप जानते हैं ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं जिसको यीशु चंगा नहीं कर सकता। Sometimes we exalt our sickness to that place where we belittle God and we exalt our sickness. कई बार हम लोग अपनी बीमारी को इतना महान, इतना बड़ा बना देते हैं कि हम परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और बीमारी को बड़ा कर देते हैं। पूरी बाइबल में ऐसा कभी नहीं कि कोई यीशु के पास आया और यीशु ने कहा, अरे मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं चंगा तो तुझे करना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, तेरी बीमारी अब 4th स्टेज हो गया, मैं 1st और 2nd स्टेज तक चंगा कर सकता हूं, 3rd 4th मैं नहीं कर सकता। Not even one person that came to Jesus, Jesus did not tell even one of them, oh my son, my daughter, I want to heal you, but I can only heal 1st and 2nd stage. Yours is a 4th stage, I cannot heal 3rd and 4th stage. No, the Bible says all that came to Jesus were healed. All that came to Jesus were healed. पर बाइबल कहती है सब जो यीशु के पास आए थे चंगे हुए, सारे लोग जो यीशु के पास आए थे वो चंगे होके गए। Amen. I am not the healer. मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। Jesus is the healer. यीशु मसीह So चंगा करता है। tonight, आज रात put your eyes on him. अपनी आंखें उस पे लगाओ। Let's magnify the healer. हम उस चंगा करने Tell him, वाले को बड़ा Jesus, करें। for you nothing is impossible. उससे कहे यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Tell him, Lord, what is cancer for you? क्या है प्रभु कैंसर आपके सामने? What is this sickness for you? क्या है एक बीमारी आपके सामने? You spoke and galaxies were created. आपने बोला और पूरी सृष्टि बन गई। You are the Almighty God. आप महान You are परमेश्वर the हो। great I am. आप महान परमेश्वर Oh, हो। sickness is no big deal for you. बीमारी आपके सामने तो कुछ भी नहीं है प्रभु।